Good evening, everybody. I welcome you all to the 13th session of our climate literacy course. Today, our resource person is Ms. Nirma Bora. And before inviting ma'am for her session, I would like to invite Ms. Ranjana Mishra for a brief introduction about her. Over to you, ma'am. Okay. Thank you, Namrata ma'am. Good evening, everyone. A hearty welcome to Ms. Nirma Bora, National Consultant on Climate Change and Environmental Sustainability, UNICEF India Country Office. She would be enriching us today on the topic role and engagement of various stakeholders in combating climate change. Ms. Bora is currently working with UNICEF India Country Office as a national consultant on climate change and environmental sustainability, CCES. In the past, she has worked with organizations like WaterAid India, Center for Science and Environment, and Ernst & Young on programs and policies related to WASH, sustainable agriculture, climate change, and environmental sustainability. She has a PhD in political science on a political perspective on India's energy security. Professionally, she has a working experience of 11 years in the development sector. So I welcome ma'am in this session today, and I wish everyone here an enriching journey through the knowledge shared by Ms. Bora. Over to you, Namrata. Thank you, ma'am. After this brief introduction, I would like to invite the resource person for today, Ms. Nirma Bora, for her session. Over to you, ma'am. Good evening, everybody. My name is Nirma. As it was just introduced, I work with UNICEF. And today, I would like to talk a little different from what the past sessions have been on climate change. आज हम लोग बात करेंगे कि क्लाइमेट चेंज में मेन स्टेक होल्डर्स कौन कौन है, और जब हम स्टेक होल्डर्स की बात करते हैं हमारा मतलब होता है कि किन किन के स्टेक्स लगे हैं, कौन प्रभावित हैं, कौन पॉलिसीज बनाते हैं, किनको पॉलिसीज किन तक पहुंचती हैं, कौन पॉलिसीज बनाने में मदद करता है, जब प्रोग्राम इम्प्लीमेंट होते हैं क्लाइमेट चेंज रिलेटेड तो किन तक पहुंचते हैं, और कौन कौन इन प्रोग्राम से प्रभावित होते हैं, बेनिफिशियरीज हैं इन प्रोग्राम के। तो जब हम स्टेक होल्डर्स की बात करेंगे, हम लोग जो लोग इम्पैक्टेड होते हैं उनकी, जो बेनिफिशियरीज होते हैं उनकी, और जो पॉलिसीज और प्रोग्राम के प्लानिंग में और इम्प्लीमेंटेशन में, मॉनिटरिंग में रोल प्ले करते हैं उनकी। और बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, ये जितने भी पॉलिसीज, प्रोग्राम्स और प्रोजेक्ट बनते हैं उनके लिए जहां से फंडिंग आती है वो डोनर्स कौन है। तो यस, माय वीडियो इज नॉट अवेलेबल बिकॉज माय साइड नेटवर्क इज वीक, बट जो मेरा प्रेजेंटेशन है वो नम्रता प्रेजेंट करेंगी। तो नम्रता, आई वुड रिक्वेस्ट इफ यू वुड स्टार्ट विद द प्रेजेंटेशन, दैट वुड फिल द गैप ऑफ my video not been available. Yes, ma'am, sure. I'll share it. Okay, we move to the next slide. And the next slide talks about India's climate scenario. So we start with this slide. इस slide में बात हम करते हैं कि इंडिया का सरफेस टेम्परेचर कितना इंक्रीज हुआ है। तो एक ड्यूरेशन दिया है 1901 to 2018, ये मोर देन 100 years टाइम है। इस बीच हमने देखा है ये सारे फिगर्स गवर्नमेंट के हैं या फिर किसी रिलायबल स्टडी जर्नल या पब्लिकेशन से आए हैं। So all of them are authentic. ये in fact गवर्नमेंट ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेस की रिपोर्ट से है कि भारत का सरफेस टेम्परेचर 0.7 डिग्री सेल्सियस बढ़ा है इन द 118 year ड्यूरेशन जो इसमें मेंशन है। नेक्स्ट क्लिक, सेम स्लाइड। वही अगर हम लोग ग्लोबल टेम्परेचर देखें तो 1.0 डिग्री सेल्सियस बढ़ा है। ड्यूरेशन इज डिफरेंट, it's a period of 1850 to 2020, लेकिन ये भी अगर आप देखेंगे 100 वर्ष का तो नहीं, 100 वर्ष से थोड़ा ऊपर का ही समय है, लेकिन
almost it is the beginning of or the end of 80s or beginning of 90s से इस 21st सेंचुरी तक का। तो ये जो 100 years का पीरियड है, भले ही वो इंडिया के लिए हो, भले ही वो ग्लोबल हो, there has been a change in the global surface temperature and this is due to man-made emission. जब हम लोग बात करते हैं ये जो ग्लोबल फिगर्स की, इसमें उन्होंने ये भी कैप्चर करा है कि नेचुरल प्रोसेसेस से कितना सरफेस टेम्परेचर इंक्रीज हुआ है, लेकिन ये जो 1.09 है, दिस इज प्योरली ड्यू टू एंथ्रोपोजेनिक या मैन मेड ह्यूमन मेड एमिशंस की वजह से राइज इन टेम्परेचर। गोइंग टू द नेक्स्ट स्लाइड, हम लोग आखिर ये देखते हैं कि अपार्ट फ्रॉम टेम्परेचर चेंज व्हाट आर द अदर क्लाइमेट चेंज एविडेंसेस। तो इनको हम लोग इम्पैक्ट नहीं बल्कि एविडेंस बोलेंगे। दिस इज अ क्लाइमेट चेंज एविडेंस, राइज इन टेम्परेचर। सेकेंड एविडेंस की बात करें, नम्रता, द नेक्स्ट स्लाइड। Sure, actually I'm trying, it's a bit stuck. Yeah, it's okay, not an issue. So the next slide, while it is coming, it talks about retreat of glaciers. So glaciers का retreat भी एक बहुत important, yes, this slide, fourth slide, right? एक important evidence है which shows that there has been warming because of which glaciers have been retreating. So by retreating we mean that the level of ice has been coming down, it has been melting. तो जो हिमालयन हिंदू कुश ग्लेशियर है वहां पर का आइस रिट्रीट का रेट आप देखिए, इट्स टू हाई, 15 meters per year. तो हिमालयन हिंदू कुश ग्लेशियर ने अपनी 40% आइस एरिया तो ऑलमोस्ट लूज कर चुकी है, 60% बची है जब ये स्टडी हुई थी इन द बिगनिंग ऑफ दिस सेंचुरी। 2015 से 20 के ही बीच की स्टडी है। सो इट इज वेरी रीसेंट दैट दिस हैज बीन फाउंड आउट। अगर हम नेक्स्ट क्लिक करें तो उस नेक्स्ट क्लिक से पता चलता है हाउ मच हैज बीन द चेंज इन द ग्लोबल आइस। Okay, the next click takes you to the next slide. The next slide talks about. Ma'am, बस 1 minute दे सकते हैं आप? I'll just. हाँ, I'll wait. So sorry, it's not working. Yes. Do you want me to try sharing the screen? Though my side network is not very good. Just a second, ma'am, मैं दूसरे डिवाइस से एक बार ट्राई करती हूँ। ठीक है, but let me continue talking. Sure. हाँ, please. तो जब हम लोग सरफेस टेम्परेचर इंक्रीज की बात कर रहे थे, हमने देखा इंडिया का 0.7 डिग्री सेल्सियस इंक्रीज हुआ था। और हिमालयन हिंदू कुश ग्लेशियर रिट्रीट हो रहा है। तीसरा इंपॉर्टेंट एविडेंस ऑफ क्लाइमेट चेंज इज इवन as the glacier, as temperature is rising, ग्लेशियर की आइस मेल्ट हो रही है, रिवर्स का रन ऑफ बढ़ रहा है, even sea level is rising. So there has been an increase in the sea level, especially जो North Indian Sea है. And a study even suggested, it proves that Bay of Bengal का coast है और जो हमारा वेस्टर्न साइड महाराष्ट्र है, सो बंगाल और महाराष्ट्र साइड सी लेवल सबसे ज्यादा राइज हुआ है। अगर हम लोग सी लेवल राइज का रेट देखें, सो फॉर द नॉर्दर्न इंडियन ओशन, जहां पर इंडियन सब कॉन्टिनेंट है, क्योंकि इंडियन सब कॉन्टिनेंट के नीचे भी इंडियन ओशन जाता है, लेकिन जब हम लोग इंडियन सब कॉन्टिनेंट के इंडियन ओशन की बात करें तो वहां पर अप्रोक्सीमेटली 3.3 मिलीमीटर्स पर ईयर आइस बढ़ी है। अब आप लोग ये कहेंगे कि 3.3 mm बहुत कम है, लेकिन ये पर ईयर है। आप ये सोचिए कि 10 साल में ये 3 सेंटीमीटर पर ईयर का फिगर दिखाएगी, विच इज quite a considerable amount of sea level rise.
तो हम लोग जहाँ पर काम करते हैं कुछ कोस्टल कम्युनिटीज के साथ, मैं आपको एग्जांपल देना चाहूंगी। उड़ीसा, केरला, इवन आंध्रा, कुछ ऐसी कोस्टल एरियाज हैं जहां पर बिकॉज ऑफ अ राइज इन सी लेवल, कोस्टल जो फिशरमैन कम्युनिटी है वो पूरी कम्युनिटीज डिस्प्लेस हो गई हैं। उनको हमको किसी दूसरी जगह रिहैबिलिटेट, सरकार को किसी दूसरी जगह रिहैबिलिटेट और रीहाउसिंग की स्कीम के अंदर दूसरी जगह रिलोकेट करना पड़ा। तो केरला में तो ये स्कीम है जहां पर गवर्नमेंट ने चीफ मिनिस्टर फंड के पैसे यूज करते हुए जहां पर भी सुनामी या से सी लेवल राइज हुआ या कम्युनिटी, कोस्टल कम्युनिटी डिस्प्लेस हुई है, उनके लिए नया हाउसिंग स्कीम स्टार्ट करा है और उनको इन वेरी नॉमिनल रेट हाउसिंग प्रोवाइड करी है। दिस आई एम टॉकिंग अबाउट द फिशरमैन कम्युनिटी। So just checking with Namrata once. It's still like Namrata, slide number 5 में अभी हम लोग थे। मैम आई थिंक आप कंटिन्यू करिए, just give me a bit more time. Sure, sure. Talking about the last evidence of climate change, अभी तक का हमने temperature, glacial retreat, sea level rise की बात करी है। We'll talk about the monsoon trend. तो क्लाइमेट चेंज का एक एविडेंस ये भी देखा गया है कि रेनफॉल के पैटर्न में देयर हैज बीन अ चेंज विटनेस। हाउएवर, अगर हम लोग टोटल रेनफॉल रिसीव्ड की बात करें वो बदली नहीं है। अगर इंडिया में जितनी भी रेनफॉल रिसीव होती थी ओवर द इयर्स, पिछले 100 या 150 सालों में, द क्वांटिटी इज द सेम, बट व्हाट हैज इंक्रीज और चेंज्ड इज द ट्रेंड। पहले मॉनसून की बारिश टाइमली स्टार्ट होती थी। 1 जून को मॉनसून आ जाता था इंडिया में, 30th में 1 जून को मॉनसून रेन यूज्ड टू स्प्रेड इवनली अक्रॉस जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर। तो JJAS जिनको मॉनसून मंथ्स बोला जाता है, इवनली स्प्रेड होती थी, थोड़ी थोड़ी वर्षा पूरे 4 महीने में होती थी। उसके साथ साथ विंटर मॉनसून्स भी होते थे, मैंगो शावर्स भी होते थे। बट अभी मॉनसून का ट्रेंड ऐसा देखा गया है, देयर विल बी वेरी लिटिल मॉनसून विल arrive late, there'll be very little rainfall in जून और जुलाई, और अचानक से एक दिन जितनी भी लो रेनफॉल हुई है उसको इवन आउट, उसका एवरेज बराबर करने के लिए वन डे देयर विल बी एक्सट्रीम रेनफॉल रिकॉर्डेड। तो होगी वही टोटल रेनफॉल रिसीव्ड ड्यूरिंग द एंटायर ईयर, बट उसका रेनफॉल का पैटर्न चेंज होगा। तो मैम कौन सा, सॉरी टू डिस्टर्ब, विच स्लाइड? तो स्लाइड्स हम लोग इस समय स्लाइड नंबर 7 में है। हाँ, हमने ये वाला कर लिया था, डिक्रीजिंग रेनफॉल। और इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन ये है कि बोला जाता है कि जैसे जैसे 1 डिग्री वार्मिंग बढ़ेगी 15% रेनफॉल में इंक्रीज होगी। हाउएवर, स्पेशली एक्सट्रीम रेनफॉल इवेंट्स 15% बढ़ेंगे, तो टोटल रेनफॉल उतनी ही रहेगी, लेकिन किसी सीजन में कम होगी और उसकी भरपाई किसी एक दिन एक्सट्रीम रेनफॉल इवेंट 15% बढ़ के आपको बारिश रिसीव होगी। और ये भी बोला जा रहा है कि एक्सट्रीम रेनफॉल इवेंट्स के जो अकरेंस के फ्रीक्वेंसी है वो भी बढ़ेगी। तो जैसे एक साल में मे बी इंडिया में 4 या 5 एक्सट्रीम रेनफॉल इवेंट्स होंगे। इस बार हिमाचल, उत्तराखंड, असम, सिक्किम में बहुत बारिश रिसीव हुई, एक्सट्रीम रेनफॉल, क्लाउड बर्स्ट के इवेंट्स थे। ये सारे एक्सट्रीम रेनफॉल इवेंट्स में 15% इंक्रीज होगा विद एवरी 1 डिग्री इंक्रीज इन वार्मिंग। तो ये बात थी क्लाइमेट चेंज की कुछ ट्रेंड्स की, एविडेंसेस की इंडिया में। तो अब हम नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं। नम्रता जी, पॉलिसी सिनेरियो। इस स्लाइड में हम लोग बात करेंगे कि इंटरनेशनल लेवल पे, भारत के स्तर पे, नेशनल लेवल और भारत के स्टेट लेवल पर ऐसी कौन कौन सी क्लाइमेट चेंज रिलेटेड पॉलिसीज हैं। ये पॉलिसीज जानना इसलिए जरूरी है कि हमको पता चलेगा ये पॉलिसीज
किसने बनाई और पॉलिसी मेकर कौन था, स्टेक होल्डर कौन था इन टर्म्स ऑफ पॉलिसी मेकर, और किसके लिए बनाई से हमको पता चलेगा कि हु वाज द मेन टारगेट ऑडियंस। तो नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं और देखते हैं ग्लोबल कुछ पॉलिसीज। तो सबसे पहले हम लोग UNFCCC के बारे में जानना की कोशिश करेंगे। UNFCCC एक इंटरनेशनल बॉडी है, एक ग्लोबल बॉडी है। ये बॉडी रिस्पॉन्सिबल है सारे क्लाइमेट चेंज रिलेटेड बातचीत करने की और कोऑपरेशंस, नेगोशिएशंस, कोऑपरेशंस बिटवीन कंट्री। तो जैसे एक UN बॉडी होती है जो बच्चों से रिलेटेड है, जिसका नाम यूनिसेफ है। UN बॉडी है जो एनवायरनमेंट से रिलेटेड है, जो यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम है, UNEP। UN बॉडी है जो वाटर से रिलेटेड है, वो है UN वाटर। सिमिलरली जो UN बॉडी है यूनाइटेड नेशंस की, जो क्लाइमेट चेंज, स्पेशली क्लाइमेट चेंज नेगोशिएशंस एंड कोऑपरेशन बिटवीन कंट्री, उससे संबंधित है, उसका नाम है यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, और UNFCCC, जिसको हम लोग CCC बोलते हैं। इंडिया भी UNFCCC का मेंबर है। हम लोग एक नॉन एनेक्स 1 पार्टी है। नॉन एनेक्स 1 पार्टी मतलब जो एनेक्स पार्टीज हैं, दे आर द इंडस्ट्रियलाइज्ड कंट्रीज, दे आर द वंस रिस्पॉन्सिबल फॉर, मेनली रिस्पॉन्सिबल फॉर increased emissions, greenhouse gases, और जो क्लाइमेट चेंज बोला जाता है मेनली उनकी वजह से हुआ था, स्पेशली आफ्टर इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। उन कंट्रीज में इंडस्ट्रीज इतनी ज्यादा प्रेवलेंट हुई, इतनी लार्जली यूज हुई कि एमिशंस वहां से ज्यादा आए। हम लोग डेवलपिंग कंट्रीज या अंडर डेवलप्ड कंट्रीज आर नॉन एनेक्स कंट्रीज। We are not mainly responsible for climate change. Moreover, annex countries की जिम्मेदारी, इंडस्ट्रियलाइज्ड कंट्रीज की जिम्मेदारी बनती है टू support, provide financial support to non-annex countries for climate change related mitigation, adaptation measures, innovations, funding, etc. साथ साथ एक इम्पोर्टेंट ग्लोबल नेगोशिएशन है जिसका नाम है पेरिस एग्रीमेंट। पेरिस एग्रीमेंट में देश, दुनिया की मोर देन 190 कंट्रीज ने इसको साइन करा है, रैटिफाई करा है। इंडिया ने भी इसको साइन करा है। और पेरिस एग्रीमेंट साइन करने के बाद हम लोगों ने ये डिसाइड करा, सारी कंट्रीज ने, कि हम लोग कोशिश करेंगे कि हम लोग ग्लोबल टेम्परेचर 2 डिग्री से ऊपर होने ना दे, और ट्राई करें कि 1.5 डिग्री सेल्सियस के अंदर ही रहे। साथ साथ पेरिस एग्रीमेंट का एक बहुत इंपॉर्टेंट आउटकम ये भी था कि हर कंट्री ने अपनी NDC या नेशनली डिटरमिन्ड कंट्रीब्यूशन सबमिट करे हैं UNFCCC को। ये NDC ये दिखाता है कि हर कंट्री ने क्या डिटरमिन करा है कि वो क्लाइमेट चेंज से में क्या कंट्रीब्यूशन देगी। तो इंडिया ने अपना सबसे पहला NDCs या फिर नेशनली डिटरमिन्ड कमिटमेंट्स या कंट्रीब्यूशंस 2016 में दिए थे। दे वर वेरी एम्बिशियस, जहां पर इंडिया ने डिसाइड करा था कि हम लोग कितना ग्रीन हाउस गैस कम करेंगे, कितना स्विच ओवर करेंगे टू रिन्यूएबल एनर्जी। एंड बाय 2020 इंडिया रियलाइज कि वो अपने NDCs अचीव करने के बहुत पास हैं। हेंस वी मेड आवर NDCs इवन मोर एम्बिशियस। जैसे अगर हमने बोला था कि हम लोग 35% एनर्जी रिन्यूएबल सोर्स से लेंगे, हमने उसको लेटर चेंज करा, 35 से उसको 45 कर दिया, just to make our commitments more stronger, make our commitments more ambitious. तो नेक्स्ट स्लाइड अगर हम लोग देखें, ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड we'll look at later, पहले हम लोग ग्लोबल कंप्लीट कर लेते हैं, then we look into our NDCs जो नेक्स्ट स्लाइड में है। एक इम्पोर्टेंट डिक्लेरेशन जो आज से 1 साल पहले COP में हुआ था इंडिया की तरफ से, वो ये था कि COP 26 में इंडिया ने मिशन लाइफ अनाउंस करा था। मिशन लाइफ एक बिहेवियर चेंज रिलेटेड इंडिया की तरफ से एक ग्लोबल प्रोग्राम है, जहां पर सारी कंट्रीज ये कमिट करेंगी, जो भी मिशन लाइफ को अडॉप्ट करेगा, व्हाट क्लाइमेट फ्रेंडली और प्रो प्लैनेट बिहेवियर्स वो अडॉप्ट करेंगे। तो मिशन लाइफ हैज अ लिस्ट ऑफ अराउंड 75 लाइफ एक्शन, जो वाटर वेस्ट, प्लास्टिक वेस्ट, हेल्दी लाइफस्टाइल, फूड पैटर्न, एनर्जी,
इन सब से रिलेटेड है। इसके बारे में हम लोग डिटेल बाद में पढ़ेंगे व्हेन वी स्टडी अबाउट गवर्नमेंट प्रोग्राम्स। बात करते हैं नेशनल लेवल एक्शंस की जो इंडिया ने लिया है। तो इंडिया में जो सबसे बड़ी the main ministry, the nodal ministry, the primary ministry who is responsible to look into climate change is the Ministry of Environment, Forest and Climate Change. 2008 में इंडिया में हमारा सबसे पहला क्लाइमेट चेंज रिलेटेड कुछ पॉलिसी या प्लान बना जिसका नाम है नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज। इसके बाद सारी स्टेट्स के मैंडेटरी था कि हर स्टेट अपना स्टेट एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज भी बनाए। स्टेट एक्शन प्लान और नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज सबसे पहले क्लाइमेट चेंज रिलेटेड मेजर्स थे, जिसमें हेल्थ, फूड, एनर्जी, फॉरेस्ट, ट्रांसपोर्टेशन, इंडस्ट्री, सारे सेक्टर्स कवर हुए थे। एंड एवरी सेक्टर में ये डिसाइड हुआ था कि हम लोग जब भी अपने सेक्टर की कोई पॉलिसी बनाएंगे या पॉलिसी गाइड मैं 30 वर्ष से बिहार से हेलो निर्मा मैम, आपको निर्मा, हेलो मैम, निर्मा मैम आपकी वॉइस नहीं आ रही है। हमारा घर पड़ता है घर से जो आप उत्तर वाली रोड जो रहुई की तरफ चल जाए, रहुई उस रोड में मैंने 4-5 वर्ष आगे बढ़ने पर एगो दाईं साइड में संगत गली जाती है। संगत अजीत सर, आपका माइक ऑन है? हाँ हाँ जी जी, आई थिंक मैम का कुछ नेटवर्क इशू है। वो भी I'm sorry, there was a disconnect of No internet issues, on my ma'am, side. no issues. हाँ Okay. So I think I was at the National Program on Climate Change, Human Health. yes yes. Okay, so the National Program on Climate Change and Human Health basically incorporates कि climate change से सबसे ज्यादा human health impact होगी, vector-borne diseases बढ़ेंगी, zoonotic diseases बढ़ेंगी, increased rainfall होगी जिस वजह से there will be health emergencies, health hazards, air pollution की वजह से there will be more cases of lung infection, lung diseases, asthmatic diseases. तो हेल्थ मिनिस्ट्री ने एक प्रोग्राम निकाला, नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज एंड ह्यूमन हेल्थ, जहां पर हर स्टेट को ये डायरेक्ट करा गया कि आप अपने एक स्टेट में वल्नरेबिलिटी असेसमेंट करिए कि आपका स्टेट कितना वल्नरेबल है टू क्लाइमेट चेंज। उसके अकॉर्डिंग ओके स्लो वॉइस, उसके अकॉर्डिंग हेल्थ मेजर्स हर स्टेट को प्लान करने हैं। So every state now has a state action plan on climate change, human health. अगर आप Ministry of Health and Family Welfare की वेबसाइट में जाएंगे, you will find this. और हाँ, nationally Mission Life global program है जो इंडिया ने लॉन्च करा है, but it has been launched by India in 2022. It was announced in 2021, but it was launched in 2022. और अगर आपने देखा होगा इस एनवायरमेंट डे मिशन लाइफ को बहुत बड़ी तरह से सेलिब्रेट करा गया। एवरी मिनिस्ट्री, बिकॉज एवरी सेक्टर इज बीइंग टच्ड बाय क्लाइमेट चेंज, हेंस एवरी मिनिस्ट्री इंक्लूडेड मिशन लाइफ एज अ कोर पार्ट ऑफ इट्स प्रोग्राम्स एंड प्लान्स। और लास्ट में हम लोग बात करते हैं स्टेट की। तो स्टेट लेवल कुछ हम लोग प्लान्स की बात करेंगे। स्टेट लेवल में डिपार्टमेंट ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट और क्लाइमेट चेंज जो है वो नोडल डिपार्टमेंट है। हर स्टेट का इंडिया में अपना स्टेट एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज है। इसके साथ साथ वी आल्सो हैव अ स्टेट प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज एंड ह्यूमन हेल्थ।
और तेलंगाना ने पिछले साल एक पॉलिसी भी अनाउंस करी है, कूल रूफ पॉलिसी। तेलंगाना में हीट वेव्स और इंक्रीज टेम्परेचर की वजह से there is a lot of dependence on cooling system. As a result of which the government of Telangana decided that it is going to introduce the cool roof policy, wherein ऐसे measures लिए जाएंगे that the dependence on AC, on electricity, on too much lighting goes down. तो next slide में जाते हैं, और नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग मैं मिशन लाइफ और एनडीसीज को डिटेल में नहीं लूंगी, लेकिन हाँ ये यहाँ पर जरूर बताना चाहूंगी कि नेशनली डिटरमिन्ड कंट्रीब्यूशन में हमने अपने एमिशन इंटेंसिटी रिड्यूस करने की बात करी है। हम लोग बाय 45% रिड्यूस करेंगे फ्रॉम 2005 लेवल। हमने ये भी डिसाइड कर रखा है कि हम लोग अपनी इलेक्ट्रिसिटी जो है, जो क्यूमुलेटिव इलेक्ट्रिसिटी है, वो धीमे धीमे नॉन फॉसिल फ्यूल या फिर रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ जाएंगे, और कितना 50% ऑफ आवर टोटल ऑफ आवर क्यूमुलेटिव, नॉट टोटल, क्यूमुलेटिव इलेक्ट्रिसिटी इंस्टॉल्ड कैपेसिटी, यानी जो हमने इंस्टॉल करी है, यूज नहीं करी है, देयर इज अ कैच हियर, जो हमने इंस्टॉल कर रखी है वो 50% रिन्यूएबल होगी। और सेकेंडली हम लोग कार्बन सिंक्स क्रिएट करेंगे अराउंड 2.5 to 3 billion tons of CO2. How? By having forest and tree covers. साथ साथ मिशन लाइफ मैंने बोला था 2021 में अनाउंस हुआ था ग्लोबली, बट 2022 में इंडिया ने इसे अडॉप्ट करा, इंडिया की 75th year of independence में। Going to the next slide. Now we are coming to the important part, which is the stakeholders. अब आपने यहाँ पर काफी एस्पेक्ट्स जाने हैं क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड, तो एक आइडिया मैं एक्सपेक्ट करती हूँ हमारे पार्टिसिपेंट्स को भी पता चल गया होगा कि क्लाइमेट चेंज पॉलिसीज में किनका रोल होगा, क्लाइमेट चेंज से कौन कौन इम्पैक्टेड है, और क्लाइमेट चेंज के लिए अगर पैसे चाहिए तो कहाँ कहाँ से आ सकते हैं। But Namrata, do let me know, is there a provision where we can ask a question to maybe the audience or the participants? मैम आप पूछ सकते हैं, they can reply in the chat box. अगर आप interact करना चाहें तो maybe you can try to. Okay, I think let me use this provision of putting up a question before the participants. Let's make it a little more participatory. Okay, so Ministry of Jal Shakti, Ministry of Health and Family Welfare, जिसको मैंने अभी बताया था कि इन लोगों ने अपना स्टेट एक्शन प्लान और नेशनल एक्शन प्लान on climate change. Even the agriculture ministry is impacted, farmers are impacted by climate change क्योंकि इतना erratic monsoon हो रहा है, hence even the agriculture ministry is one of the important stakeholder, and so is the Ministry of New and Renewable Energy. So all of ministries है और उनका काम है कि जितने भी plans, policies हो, भले ही वो हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर हो, it should be sustainable, या फिर हमारी सर्विस डिलीवरी हो, इट शुड बी सस्टेनेबल। अगर कोई कल को एक्सट्रीम रेनफॉल आता है या ड्रॉट होता है, देन आवर सर्विसेज शुड बी एबल टू फंक्शन डिस्पाइट अ ड्रॉट, डिस्पाइट हेवी रेनफॉल। सो एवरी मिनिस्ट्री, और हाँ यहाँ पर एजुकेशन नहीं मेंशन करा है, बट एनवायरमेंट मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने भी अपना करिकुलम रिवाइज करा है, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क, और अब मेरे ख्याल से आने वाले एक या 2 साल में नई टेक्स्ट बुक्स लॉन्च जो होंगी सीबीएसई की, उसमें वी हैव एडवोकेटेड टू द मिनिस्ट्री की स्टूडेंट्स की टेक्स्ट बुक्स की और टीचर ट्रेनिंग में भी क्लाइमेट चेंज के कॉन्सेप्ट्स इंट्रोड्यूस करे जाएं। ऑलरेडी एनवायरमेंट सस्टेनेबिलिटी था, बट न्यू कॉन्सेप्ट्स नीड टू कम इन, एंड अपार्ट फ्रॉम very theoretical knowledge, students should also have hands-on experience of how to make a compost pit, how to make a grey water soak pit, how to make a rainwater harvesting unit. तो ये सब skills भी students को सिखाई जाए, especially of standard 11 and 12. बात करते हैं मिनिस्ट्रीज के सिवा भी काफी डिपार्टमेंट्स हैं जिनका नाम आपने अभी चैट बॉक्स में लिखा था, which are responsible for looking into environment and climate change related issues. For example, the Central Pollution Control Board, State Pollution Control Board,
सिमिलरली डिपार्टमेंट ऑफ ड्रिंकिंग वाटर एंड सैनिटेशन, जिनका नाम मैंने अभी लिया था, ये मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति के हैं, डिपार्टमेंट ऑफ ड्रिंकिंग वाटर एंड सैनिटेशन। और सीपीसीपी जो है वो मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के डिपार्टमेंट है। एनसीडीसी है वो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर का डिपार्टमेंट है। जो नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज है वो एनसीडीसी के पास है, इट्स द नोडल डिपार्टमेंट ऑफ लुकिंग इनटू दैट एक्शन प्लान। सिमिलरली एनसीईआरटी है वो आपकी टेक्स्ट बुक्स को रिवाइज कर रहा है स्कूल लेवल में टू इंश्योर दैट उसमें क्लाइमेट चेंज के कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस हो। और अंडर मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट देयर इज अ डिविजन व्हिच इज कॉल्ड स्किल काउंसिल फॉर ग्रीन जॉब्स। ये बेसिकली ट्रेन करता है यूथ को ऑन green sectors, for example, solar, bioenergy, wind energy, etc. So basically ministries laws and policies बनाएगी, but उसका implementation departmental या जो उनके different divisions है ministry के वो करेंगे। एक बहुत important stakeholder है local governing bodies। हम लोग national या state policies को इतना influence नहीं कर पाते हैं, but हम लोग जिस शहर में रहते हैं उस शहर की अपनी लोकल गवर्नमेंट बॉडीज है। अगर हम लोग अर्बन एरिया में रहते हैं तो अर्बन लोकल बॉडी है, वहां एक मेयर होगा या म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का हेड होगा। अगर हम लोग रूरल एरिया में रहते हैं तो हमारे गांव में जो भी ग्राम पंचायत है उसका सरपंच होगा। और ये जो लोकल और गवर्निंग बॉडीज हैं उसमें कहीं ना कहीं कम्युनिटी पार्टिसिपेशन आसान होता है। हम लोग राज्यसभा, लोकसभा या विधानसभा में नहीं जा सकते हैं, बट हम लोग अपने वार्ड के हमारे पेरेंट्स या हमारे फैमिली मेंबर्स ये वार्ड कमेटी के मेंबर्स हो सकते हैं या पंचायत कमेटी के मेंबर्स बनके लोकल पॉलिसीज, लोकल डिसीजन मेकिंग इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। और लास्टली एक इंपॉर्टेंट गवर्नमेंट स्टेक होल्डर्स हैं एकेडमिक इंस्टीट्यूट्स, फॉर एग्जाम्पल IITs, IIM और गवर्नमेंट के और भी इंस्टीट्यूट्स इंपॉर्टेंट, फॉर एग्जाम्पल BHU, दिल्ली यूनिवर्सिटी। आपके वहाँ की जो शहर में जो यूनिवर्सिटीज हैं इन सब में ज्योग्राफी डिपार्टमेंट या सेंटर फॉर क्लाइमेट स्टडीज, सेंटर फॉर एनवायरमेंट स्टडीज हैं। और ये सारे सेंटर्स में रिसर्च होती है, ये सारे centers have technical knowledge and many a times they even support a particular state government or the national government for technical inputs while drafting a policy or a plan or a scheme. Okay, next slide में जाने से पहले I will do a quick recap. Let me just put up another question and see it in the chat box what kind of responses I'm getting. मैंने अभी आपसे बात करी थी कि इंडिया में क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड 2008 में सबसे पहला एक प्लान बना। किसी को याद है कि उस प्लान का क्या नाम है? You can type it in the chat box. सबसे पहला 2008 में एक क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड एक प्लान बना था। That was the very first climate change plan of the country, NAPCC. Okay, very good. But if somebody can write down the full form of NAPCC, I'll be patient enough and wait. NAPCC sahi hai, it's correct. But what's the full form of NAPCC? NAPCC. Very good. The National Action Plan on Climate Change. Very good, very good. ओके, नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज। इसके बाद मैंने एक और चीज बोली थी कि इस प्लान में NAPCC, इस प्लान में 8 मिशंस बनाने की बात करी थी। तो नेशनल एक्शन प्लान ने कहा कि हर 8 मिशंस बनेंगे अंडर द नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज, जो अलग अलग 8 इंपॉर्टेंट सेक्टर्स को केटर करेंगे, की तरफ ध्यान देंगे और देखेंगे। ये मैंने अभी तक 8 मिशंस की बात अभी नहीं करी है, बट जस्ट इफ एनीबडी नोज एनी ऑफ द 8 मिशन अंडर द नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज। अच्छा ठीक है, अगर मिशन का नाम नहीं याद है तो आपको क्या लगता है कि किस सेक्टर से रिलेटेड हो सकते हैं ये?
कौन सा सेक्टर मोस्ट इम्पैक्टेड है, तो इस सेक्टर से रिलेटेड तो मिशन जरूर होगा। इस एनर्जी, यस देयर इज अ मिशन ऑन एनर्जी, देयर इज अ मिशन ऑन वाटर, और थोड़ी से सेक्टर्स जो आपको लगता है, ओके एग्रीकल्चर, वेरी गुड, यस, sustainable development, renewable energy, good, sustainable development, solar, okay, yes, there is a solar mission, food security, water conservation, very good, carbon, ये सब renewable, good responses. Any other? I think you have covered around 5-6, तो 8 में से 5-6 तो आप लोगों ने habitat, sustainable habitat, very good. I think just one is left, agriculture एक और left है, सबने सारे सेक्टर्स की बात करी, बट नॉलेज वाज लेफ्ट ऑन सस्टेनेबल नॉलेज। ठीक है, सो नेक्स्ट स्लाइड में मैंने स्लाइड मोड में नहीं रखा है, बिकॉज इन दैट केस आई विल नॉट बी एबल टू गेट द ऊपर का बैंड। ठीक है, तो ये क्लाइमेट गवर्नेंस स्ट्रक्चर इन इंडिया का स्लाइड है। लेट मी सी इफ आई कैन डू स्लाइड मोड। Okay, is the slide mode visible? You can just type a yes if it is visible. Okay, good. तो मैं chat box हटा रही हूँ। Okay. सबसे नोडल मिनिस्ट्री है मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज। उसके अंदर एक नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज बना था। नेशनल एक्शन प्लान ने कहा देयर आर 8 सेक्टर्स व्हिच आर हाईली इंपैक्टेड बाय क्लाइमेट चेंज। तो उन्होंने ये 8 मिशंस बनाए। तो जैसे नेशनल सोलर मिशन, मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जीज मिशन को देखता है। ऑल दीज आर, दो एवरी मिनिस्ट्री इज इम्पैक्टेड, has a mandate to make climate resilient policies and program, but ये 8 की ministries हैं, 7 हैं, एक मिनिस्ट्री के अंदर 2 मिशन आते हैं। ये 7 की मिनिस्ट्रीज हैं बिकॉज ये सबसे ज्यादा इम्पैक्टेड हैं। फॉर एग्जाम्पल सोलर मिशन बनाया बिकॉज मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी की जिम्मेदारी बनती है टू ग्रेजुअली शिफ्ट फ्रॉम coal based thermal power plants to solar, wind energy, etc., biogas. Similarly, Ministry of Power is responsible for enhanced energy efficiency. Energy efficiency मतलब मैं अपने घर में बिजली का इस्तेमाल करूं, पर ऐसे कि कम से कम बिजली खर्च हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं एक ट्यूबलाइट यूज करूंगी, वो आराम से 80 वॉट की होगी, लेकिन अगर मैं वही एलईडी लाइट यूज करूंगी, वो सेम ल्यूमेंस देगी। ल्यूमेंस मतलब वो सेम रोशनी देगी, लेकिन वो 20 वॉट की होगी। थोड़ा पैसे ज्यादा लगेंगे, बट अगर आप उसका रिटर्न्स देखिएगा, 5 साल चलेगी एक ट्यूबलाइट से, मे बी 5 गुना ज्यादा, तो वो कवर कर जाता है आपका पैसा। तो मैं सेम रोशनी या ल्यूमेंस अपने पढ़ाई के लिए यूज कर रही हूँ while switching over from a 80 watt ट्यूबलाइट्स to a 15 watt LED। सेम रोशनी आ रही है, लेकिन वो 15 वॉट कम बिजली खींचेगी फ्रॉम द ग्रिड। So this is what energy efficiency is about. Similarly, Ministry of Urban Development में National Mission on Sustainable Habitat है, क्योंकि अर्बन डेवलपमेंट इस पेस से हो रहा है, ज्यादा से ज्यादा फॉरेस्ट एरियाज, रूरल एरियाज अर्बनाइज हो रही हैं। अर्बन डेवलपमेंट भी सस्टेनेबल हो, बिल्डिंग्स जो हो वो ग्रीन बिल्डिंग्स बने। हम लोग जब अपने घर का प्लान है, जब भी सैंक्शन हो, बोला जाता है कि अगर आई थिंक 500 स्क्वायर मीटर से बड़ा किसी का घर हो, हर स्टेट का अलग है हाउसिंग पॉलिसी, लेकिन 500 स्क्वायर मीटर से ज्यादा बड़ा घर हो तो फिर आई थिंक सॉरी 500 meters or 500, आई एम नॉट रिमेम्बरिंग, लेकिन उसमें रेन वाटर हार्वेस्टिंग होना, यूनिट होना जरूरी है, कुछ स्पेस, ग्रीन स्पेस होना मैंडेटरी है। सो अर्बन डेवलपमेंट में ये चीजों का भी ध्यान दिया गया है। सिमिलरली, मिनिस्ट्री ऑफ वाटर रिसोर्सेस, जो मिनिस्ट्री ऑफ वाटर रिसोर्सेस का नाम बदल गया, मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति है अब। इसके अंदर नेशनल वाटर मिशन है। मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट के अंदर नेशनल मिशन ऑन ग्रीन इंडिया है। मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंदर 2 मिशन है, नेशनल मिशन ऑन सस्टेनिंग हिमालयन इकोसिस्टम एंड नेशनल मिशन ऑन स्ट्रेटेजिक नॉलेज ऑन क्लाइमेट चेंज। लास्ट मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर है, जिसके अंदर है द नेशनल मिशन ऑन सस्टेनेबल एग्रीकल्चर। किसी ने चैट बॉक्स में NMSA लिखा था, दिस इज व्हाट NMSA इज। ठीक है, इसके बाद
यहाँ पर काफी कमिटीज का नाम दिया गया है, which I will not look into. I will move into the next slide. ठीक है, next slide दिखाने से पहले again some question answers on the chat box, so be ready. Okay, every department and bodies, including cutting trees, road construction type of industry setup, need to have approval. So कटिंग ट्रीज में तो सबको अप्रूवल चाहिए. इनफैक्ट अगर मेरे घर के आगे एक ट्री लगा हो और मैंने ही लगाया हो, उसको कट करने के लिए भी अप्रूवल चाहिए, भले ही वो मेरे घर के आगे का पेड़ हो. तो जंगल काटना तो बहुत बड़ी बात है, एक छोटा सा पेड़ काटने के लिए भी अप्रूवल चाहिए. आपको रैशनल देना होता है. फॉर एग्जाम्पल, मेरे को याद है कि इस साल मेरे पड़ोसी के घर के आगे का पेड़ एकदम सूख गया था और वो बिजली के पोल के ऊपर गिरने वाला था, बट दे कुड नॉट कट इट. उनको परमिशन लेनी पड़ी. उन्होंने इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट को बताया कि पोल पे गिरने वाला है आपका पेड़, लाइट जो है वो कहीं शॉर्ट सर्किट ना हो. सो इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट टुक अप्रूवल टू कट द ट्री. और वो पेड़ काटने के लिए कोई, तो ये महीना भर का प्रोसेस चला है पेड़ काटने के लिए, जो इमरजेंसी था टू कट इट. तो यस, ये तो है. ओके, बट अ क्वेश्चन टू एवरीबडी. ऐसी मैंने प्रेजेंटेशन के शुरुआत में भी काफी एक UN body का नाम लिया था, which I said it's the nodal body for all climate change related agreements, negotiation, cooperation, etc. क्या आपको वो UN एजेंसी का नाम याद है? If yes, please do type it on the chat box. UNFCCC, very good. Very good. Yes, not UNDP. UNDP development program देखता है. MOFC is not UN body. UNICEF is a UN body which primarily looks into children. But nodal is UNFCCC, United Nations Framework Convention on Climate Change, जिसके अंदर IPCC आता है, Intergovernmental Panel on Climate Change. जो जितनी भी रिपोर्ट्स बनती हैं UNFCCC के अंदर, वो IPCC निकालता है. Okay, so IPCC comes under UNFCCC. IPCC mainly knowledge management देखता है UNFCCC में. यूनिसेफ बच्चों का काम देखता है. बट अब मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बताती हूँ. एवरी UN बॉडी के पास इंस्ट्रक्शंस गए हैं कि आपको देखना है, भले वो UN वाटर हो, UNDP हो, UNEP हो, यूनिसेफ हो, फूड एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन हो, every UN agency, World Health Organization हो, is now mandated to ensure that climate change is a part of its work. We did CEE program under UNICEF funding. Center for Environment Education, bilkul. Yes, G20 countries also agreed on a climate improvement. उन्होंने 3-4 points agree करे थे इस बार. Very true. So apart, while UNFCCC is the nodal agency for climate related work, but every UN agency is now responsible, is now mandated to ensure कि उनके काम में climate resilience जरूर include हो. For example, UNICEF में अगर मैं बच्चों की health के बारे में बात करूं, with environment degrading, with pollution going up, every child, adult, women, every age group is now impacted by air pollution. In fact, Delhi में इस बार जो graded response action plan है पोल्यूशन से रिलेटेड, वो इतनी जल्दी इंट्रोड्यूस हो गया. हमेशा विंटर्स में होता था, इस बार दिवाली से पहले ही हो गया. बिकॉज 2 दिन पहले न्यूज में था कि पंजाब हरियाणा साइड काफी फार्मर्स ने अपना धान का जो हस्क है, वो वेस्ट, वो जलाना शुरू कर दिया है. तो जैसे ये सब शुरू होता है, ग्राफ कम्स इनटू प्लेस, इम्प्लीमेंटेशन चालू हो जाता है. Air pollution बढ़ेगा. Children will be impacted by rising air pollution. Parali, right? Parali. Yes. The mulch, which we call mulch. Yes. We given seminar. Okay, good. So it's very important that बच्चों के rising air pollution से related UNICEF काम करे. Similarly, UN water के लिए भी बहुत जरूरी होगा कि आने वाले समय में जब every street, every ground, every surface area इतना concretized हो गया है
कि नेचुरल रिचार्ज नहीं हो रहा, हमको आर्टिफिशियल रिचार्ज, रेन वाटर हार्वेस्टिंग करना पड़ रहा है। हर यूएन ऑर्गेनाइजेशन, भले वो यूएन वाटर हो, WHO, उसका मैंडेट है कि अपने एरिया से रिलेटेड कामों में, लिंक शेयर करिए प्लीज, ओके आई एम शेयरिंग, अपने एरिया के कामों में सस्टेनेबिलिटी और क्लाइमेट रेजिलियंस इंक्लूड करें। ओके, ठीक है, ये तो हो गया यूएन से रिलेटेड। नाउ लेट मी आस्क यू, अपार्ट फ्रॉम यूएन बॉडी, डू यू नो एनी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन? डू नॉट नेम एनी नेशनल ऑर्गेनाइजेशन प्लीज, नेशनल में हम लोग इसके बाद आएंगे। डू यू नो एनी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन जो एनवायरमेंट में काम करता हो? वो यूएन नहीं होना चाहिए, वो नेशनल नहीं होना चाहिए, एनी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, किसी भी इंटरनेशनल, WHO यूएन में आता है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन इज अ विंग ऑफ यूएन, नाम यूएन से स्टार्टेड, वेरी गुड, WWF का फुल फॉर्म यूरोपियन यूनियन, वेरी गुड। somebody, IUCN, very good, very good, very good, smart people, smart audience here. किसी ने WWF लिखा था, WWF का फुल फॉर्म आई वांट, WTI, कैन, वर्ल्ड मीटरोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन भी ठीक है। आई कैन is this CANSA, वर्ल्ड वाइल्ड फंड, नहीं, वर्ल्ड वाइल्ड फंड फॉर नेचर, फुल फॉर्म इज WWF लिखते हैं, लेकिन इफ यू सी द फुल फॉर्म दे राइट वर्ल्ड 350.org, वेरी गुड, AFAD, ओके। any other organization? Greenpeace, very good, very good, one of the pioneers working on environment, Greenpeace. APN, I've not heard. FFF, I've not heard, full form likhiye please. World Meteorological Organization, good. KPMG, KPMG is a corporate, और ये लोग गवर्नमेंट के प्रोजेक्ट्स लेते हैं, KPMG, EY, Earth Justice, okay, ठीक है। नाउ वी एंड दिस क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका आंसर मेरे को चाहिए, एंड दिस क्वेश्चन, NRDC, आई डू नॉट नो द फुल फॉर्म ऑफ NRDC, बट प्लीज इफ यू कैन एंटर एनी नेशनल NGO, इंटरनेशनल नहीं चाहिए, UN नहीं चाहिए, अ नेशनल NGO जो क्लाइमेट चेंज पे काम करता हो या एनवायरमेंट पे काम करता है। एनवायरमेंट एंड क्लाइमेट चेंज इज सेम। जब एनवायरमेंट आप लोग, when you screw up the environment, तभी क्लाइमेट चेंज होगा। Switch on, yes, switch on, National Resource Defense. Any other national NGO जो एनवायरमेंट में काम करता है? पिरामिड फाउंडेशन, ओके, वेरी गुड। टाटा ट्रस्ट, वेरी गुड। धान फाउंडेशन, गुड गुड गुड। किसी ने स्माइली भेजी है, स्माइली ऑलवेज वर्क्स, ठीक है। I'll move ahead now. नेक्स्ट स्लाइड दिखाने की जरूरत नहीं है। युवा, CSE, वेरी गुड, CSE, yes. You have not heard of Yuva. Cry, yes, it works on children and environment. Next slide, I'll move to the next slide. Next slide दिखाने की जरूरत नहीं है because you have already answered everything. मेजर प्लेयर्स हैं, तो इसमें UN ऑर्गेनाइजेशन है जिनका नाम दिया है, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, इवन बैंक्स, तो वर्ल्ड बैंक काफी फंड देता है फॉर, my connection is unstable, I need to just check if I do not lose network. Okay, Ma'am, if you want, I can share now. you want to share? Okay, I'll stop मतलब sharing. अगर हाँ आपका अगर नेटवर्क का इशू हो रहा है तो, because it was showing network issue. yes, sure, I'll share it. So while Namrata is sharing, even banks give a lot of money, though they are not development sector organization, but World Bank, Asian Development Bank give a lot of money. Actually, I should have put them under, they are not CSRs, but they are sources of funds on climate related work. और national NGOs, Sorry किसी to ने interrupt, CSE का ma'am, नाम दिया था। stop sharing or
I'm not getting stop share. Okay. Yeah. Okay. I'll let you know the slide number. हम लोग हैं slide number 13. We're on slide number 13. तो हम लोग बात कर रहे थे Key development. Is it okay, ma'am? Hello. Okay, thank you कि आप लोगों ने रिप्लाई किया. I think मैम के नेटवर्क का इशू है. मैम ज्वाइन कर ही रही है. Okay. Yes. So Ma'am, this I is need- done. We move to मैम एक्सक्यूज मी. हाँ जी. मैम बीच में आप ऑडिबल नहीं थे. Yes, I think I lost Okay. my voice there. Sure. But let me know if I'm audible now. Yes, ma'am, you are. Okay. ठीक है. So we have covered government as a stakeholder. We have government development sector organization as a stakeholder. Now let's go to the not main, but one of the main stakeholders who give us money for all climate and environment related work. We'll now be talking about banks की हमने बात कर लिया जहां से पैसा आता है. UN organizations भी पैसा देते हैं. Some international organization also fund money. Projects भी करते हैं, पैसा भी देते हैं. But a very important source of money is also CSR, or anybody knows the full form of CSR? CSR आवाज तो शायद आ रही है. आ रही है मैम. Okay, corporate social responsibility. Okay, very good, good. Sami, Begop, Hemant, good. Okay, so corporate social responsibility. Anybody knows a CSR organization, a CSR actor, जहां से पैसा आता है? सबने corporate social responsibility लिखी है, लेकिन किसी CSR का नाम? Very good. Deloitte. Deloitte is one of the big fours. Tata Steel, Reliance Foundation, Tata. So Tata is foundation बन गया है ना? So एक बार अगर foundation बन जाता है, then it becomes a development sector. हम लोग next slide में जाते हैं तो आपको थोड़ा अच्छे से पता चलेगा. Next slide में मैंने instead of writing EY is another, it's a corporate. जो आपके very good Power Grid Corporation is. Let me put this aside. तो नेक्स्ट स्लाइड में जाते हैं और यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि कुछ ऐसी कंपनीज के नाम हैं जो पैसा देते हैं. विप्रो इज, HCL फाउंडेशन हो गया, तो HCL डेवलपमेंट सेक्टर हो गया. कुछ कॉर्पोरेट्स ने क्या करा है कि अपने ही फाउंडेशंस बनाए हैं. कोल इंडिया वेरी गुड, NTPC बिल्कुल देता है पैसा. बट जिन्होंने अपने फाउंडेशन नहीं बनाए हैं वो CSR के अंदर बाकी NGOs को रुपए देते हैं. दे कैन गिव मनी टू UNDP, टू यूनिसेफ, टू HAL. यस, HAL बिल्कुल देता होगा, BHEL भी, HDFC बिल्कुल. ये सारे CSR एक्टर्स हैं. तो जैसे मारुति सुजुकी, ITC, रैकेट बहुत ज्यादा पैसा देता है फॉर वाटर हैंड वॉशिंग रिलेटेड projects. HDFC Bank, Hindustan Unilever, ONGC, very good, yes, ONGC, NSC, यूनिसेफ ने NSC के काफी प्रोजेक्ट्स करे हैं. NTPC देता है, NCL देता है.
नेशनल कोल लिमिटेड या कोल लिमिटेड, यहाँ तक कि डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउंडेशन, ओएनजीसी, बिल्कुल आईसीआईसीआई, यस यस इट डज। आईसीआईसीआई का फाउंडेशन नहीं है, आईसीआईसीआई देता है, राइट, अदानी पोर्ट्स देता है, बिल्कुल देता है। डीएमएफ, whoever has written DMF, very good। डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउंडेशन भी देता है, जहां जहां स्पेशली झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, कर्नाटका, where a lot of mining takes place, वेदांता, हाँ, जितने भी सारे बड़े कॉर्पोरेट्स हैं, ऑल आर मैंडेटेड कि कुछ परसेंट अपना पैसा जो है वो सोशल वर्क में भी दें। ओके, बजाज ऑटो आल्सो गिव्स, यस आई नो। सो दीज आर द एक्टर्स हु आर पेइंग मनी फॉर एनवायरमेंट, क्लाइमेट चेंज रिलेटेड फंड्स, प्रोजेक्ट्स एंड प्रोग्राम्स। तो गवर्नमेंट भी पैसा देती है, इंटरनेशनल एनजीओ, गवर्नमेंट पैसा भी देती है, इम्प्लीमेंट भी करती है, डेवलपमेंट सेक्टर ऑर्गेनाइजेशंस पैसा भी देते हैं, इम्प्लीमेंट भी करते हैं, बट सीएसआर पैसा देता है एनजीओस को, यूएन ऑर्गेनाइजेशंस को, समटाइम्स yes, for implementing these projects, many times even to the government also. We move to the next slide now. Okay, हमने काफी स्टेक होल्डर्स की बात करी, सरकार से लेके और एनजीओ से लेके सीएसआर तक का, but because I work in UNICEF, it is very important that I bring it to your notice that children are also an important stakeholder. इसलिए because they are impacted by climate change and environment degradation, and also because they have a role in bringing about a change. अगर आपको लगता है कि as youth you can only be impacted, no, it's not true. You can also bring about a change. And the next last 5 slides जो अब बाकी हैं वो इसी बारे में बात करेंगी कि आप लोग, बच्चे कैसे impacted होते हैं और youth साथ साथ वो कर क्या सकते हैं. It will be a very good learning for you all at the end of the session, because I'll ask everybody, please listen and watch the coming 5 slides very carefully, because at the end I'll ask you what will be your action step for another 1 month, 2 months or 1 year. So next slide में जाते हैं और हम लोग देखते हैं कि क्लाइमेट चेंज बच्चों को कैसे इम्पैक्ट करता है. तो क्लाइमेट चेंज में 3-4 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती है. हम सारे एविडेंसेस की बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन टेम्परेचर बढ़ेगा तो ड्रॉट यानी सूखा होगा, हीट वेव्स चलेंगी, फ्लड्स, बारिश ज्यादा हुई तो फ्लैश फ्लड्स होंगे, साइक्लोन भी आएगा अगर बहुत गर्म हुआ, डिप्रेशन जितना होगा, डिप्रेशन एरिया उतना साइक्लोनिक विंड्स बढ़ती हैं, और ग्लेशियर मेल्ट से इंक्रीज रेनफॉल, फ्लैश फ्लड, क्लाउड बर्स्ट से सी लेवल राइज भी होगा. ये सारी जो सब पड़ेगा. या फिर जैसे हीट वेव हुई तो हीट स्ट्रेस हुआ, आपको थोड़ा सा चक्कर आया, बेहोशी हुई, वॉमिटिंग सा फील हुआ. अगर साइक्लोन आया, फ्लैश फ्लड हुआ, क्लाउड बर्स्ट हुआ, हम लोग देखते हैं उत्तराखंड में, हिमाचल में, चिल्ड्रन गेट सेपरेटेड फ्रॉम देयर फैमिली. जैसे अर्थक्वेक में इम्पैक्ट होता है, वैसे ही एक साइक्लोन में उड़ीसा, वेस्ट बंगाल साइड, बांग्लादेश साइड, इट इम्पैक्ट्स द sometimes even it leads to socio-economic disruption. For example, स्कूल की बिल्डिंग टूट गई, हॉस्पिटल टूट गया, एक आंगनवाड़ी सेंटर था वो टूट गया, बिजली का पोल टूट गया, लाइट नहीं आ रही है, बच्चे स्कूल नहीं जा रहे हैं, देयर इज लॉस ऑफ स्कूल डेज, ट्रांसपोर्ट नहीं है, किसी बीमार को हॉस्पिटल पहुंचाना है तो ट्रांसपोर्ट नहीं है, अगर ट्रांसपोर्ट हो भी तो रोड टूटी है, अगर रोड भी है, ट्रांसपोर्ट भी है, तो वो जो हेल्थ केयर फैसिलिटी है वो पूरी बाढ़ में भरी हुई है. सो इट इम्पैक्ट्स एवरीबडी, नॉट जस्ट चिल्ड्रन, बट चिल्ड्रन आर मोस्ट इम्पैक्टेड. सी लेवल राइज होगा तो घर के अंदर पानी आएगा, नल से भी कंटामिनेटेड पानी निकलेगा, पानी खारा या फिर सलाइन ज्यादा होगा क्योंकि समुद्र का खारा पानी शहर के अंदर आना लगेगा. इनफैक्ट जो स्वीट वाटर लेक्स या पॉन्ड्स होंगे वो भी खारे हो जाएंगे, तो हेल्थ इम्पैक्ट होगी. अगर एग्रीकल्चर
में सही टाइम पर बारिश नहीं हुई, क्रॉप्स प्रोड्यूस नहीं होंगे सही टाइम पर, कम धान उगेगा, कम चावल निकलेगा, कम गेहूं निकलेगा, सब्जियां डैमेज हो जाएंगी, हेल स्टॉर्म हुआ, ओलावृष्टि हुई, सब्जियां डैमेज हो गई, कहीं ना कहीं न्यूट्रिशन इम्पैक्ट होगा बच्चे का। स्पेशली वो गांव का परिवार जो बाजार से जाके सब्जी नहीं लाता बल्कि अपने बाड़ी में खुद ही सब्जी उगाता है, उसका सबसे पहले न्यूट्रिशन लेवल इम्पैक्ट होगा। अगर परिवार का घर टूट गया, कोई फिशरमैन कम्युनिटी है, साइक्लोन की वजह से वो महीने भर तक का समुद्र में मछली पकड़ने नहीं जा पाया, तो कहीं ना कहीं इकोनॉमिक लॉसेस होंगे, बच्चे को चाइल्ड लेबर करना पड़ेगा, महिलाओं को बाहर काम करने के लिए निकलना पड़ेगा, क्या पता काम सेफ वर्किंग एनवायरनमेंट ना हो, उनको हैजर्डस वर्किंग कंडीशन में काम करना पड़े, पटाखे बनाने की फैक्ट्री में बच्चे को काम करना पड़े, बच्चा 14 साल से कम है फिर भी उसको काम करना पड़े और चाइल्ड लेबर में आएगा। सो ऑल दिस इज विल इम्पैक्ट द हेल्थ ऑफ अ चाइल्ड, उसका स्कूल मिस होगा, उसका मेंटल हेल्थ इम्पैक्ट होगा, देयर स्पेशली if the child is separated from her family, तो trauma वगैरह, it will lead to physical health damages as well as mental health condition will deteriorate. स्कूल वगैरह तो जो लॉस होगा वो होगा। ओके, लेकिन कैन एनीबडी टेल मी कि अगर कभी भी कोई क्लाइमेट हैजर्ड आया, भले वो एक्सट्रीम इवेंट है या फिर स्लो ऑनसेट इवेंट है, क्लाइमेट से रिलेटेड, एनवायरनमेंट से रिलेटेड, बच्चे इतना ज्यादा क्यों इम्पैक्ट होंगे? Why are children more vulnerable to any climate hazard or any environmental hazard than as compared to adults? Yes, war-like situation में भी kids are they get separated from their family, but एक climate hazard, especially an extreme event, cloudburst, flash flood, increased rainfall, बच्चे क्यों इम्पैक्ट होंगे सबसे पहले? Any answers? Just try. ठीक है, they are ignorant, उनको नहीं पता पेड़ में कैसे चढ़े, स्विम करके कैसे किनारे पहुंचे, they lack the capacity to realize physically, okay, to be resilient, ठीक है, उतना resilient नहीं है, don't know what to do, okay। अब हम लोग थोड़ा सा स्पेसिफिक इसके आंसर्स पता करते हैं। अगर हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में जाएं, we will find that कभी भी कोई भी एनवायरमेंट हैजर्ड हो, हम लोग एक एक करके एनवायरमेंट हैजर्ड देखेंगे। फॉर एग्जाम्पल अ क्लाइमेट डिजास्टर, अगर कभी भी क्लाइमेट डिजास्टर होता है, हम लोग देखते हैं कि सबसे ज्यादा इम्पैक्ट जो होते हैं बच्चे इस वजह से होते हैं बिकॉज दे डू नॉट नो हाउ टू रेस्क्यू देमसेल्व्स, एंड समटाइम्स अगर वो लोग स्कूल में होते हैं और कोई क्लाइमेट फ्लैश फ्लड आया, साइक्लोन आया, इट्स वेरी डिफिकल्ट फॉर देम टू गो बैक होम। पेड़ टूट कर रास्ते में पड़े हैं, बिजली का पोल रास्ते में पड़ा है, समटाइम्स दे गेट सेपरेटेड फ्रॉम द फैमिली। अगर फ्लैश फ्लड हो, बह गए, पुल टूट गया, उसी पुल से उनको नदी पार करते हुए इनको घर जाना था, नहीं जा पा रहे हैं, 3-4 दिन अपने फैमिली से कटे हुए हैं, दे डू नॉट नो हाउ टू स्विम। So in the case of an extreme disaster, they are unable to sometimes connect with their family. Sometimes they may even get split from their family. Secondly, अगर air pollution का आपके शहर में केस है, तो children are more vulnerable to air pollution because बच्चे जो हैं they breathe twice the time an adult breathe. एक adult अगर 1 मिनट में 16 टाइम breathe करेगा, तो बच्चे 32 टाइम breathe करेंगे. So their breathing rate is faster. Hence, they are able to breathe in more polluted oxygen, and their chest, their lungs get filled with more contaminated air as compared to adult. Hence, recovery is also very harder. तो अगर एक adult के lungs में थोड़ी बहुत कार्बन डाइऑक्साइड होगी या CH4 होगी, which we call मीथेन गैस होगी, एक बच्चे के लंग्स में सेम कमरे में, सेम शहर में, it will be twice the amount of polluted air in his lungs. That's why children are more vulnerable to air pollution. अब बात करते हैं chemicals
और टॉक्सिक वेस्ट की, तो बच्चों को इफ दे आर एक्सपोज टू केमिकल वेस्ट, अगर कहीं भी लैंडफिल हो घर के आगे, डंपिंग साइट हो, तो उससे निकलने वाला एमिशन जो है वो बच्चों को ज्यादा इम्पैक्ट करता है। वो जल्दी उनको चक्कर आएगा, वॉमिटिंग सा फील करेंगे, ब्लड विजन सा उनको लगेगा, एंड अगर हाई एक्सपोजर हो इट कैन ऑल्सो लीड्स टू पैरालिसिस और लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस। और लास्टली वाटर पोल्यूशन, अगर आपके घर में कंटामिनेटेड वाटर आता, भले ही वो बैक्टीरियोलॉजिकली कंटामिनेटेड हो यानी उसमें फीकल मैटर पड़ा हो, या केमिकली कंटामिनेटेड हो यानी उसमें नाइट्रोजन की मात्रा ज्यादा हो, yes, because of these there are neurological problems because of exposure to toxins and chemicals. हम लोग बात कर रहे थे वाटर पोल्यूशन की, बिकॉज बच्चों का मेटाबॉलिज्म, उनकी ग्रोइंग एज है, उनके सारे बॉडी के पार्ट्स उतने अच्छे से डेवलप नहीं हुए हैं जितने एक अडल्ट के हो गए हैं, दे आर मोर वल्नरेबल टू कंटामिनेटेड वाटर। उनका इम्यूनिटी, भले बोलते हैं बच्चे की इम्यूनिटी बहुत अच्छी है, लेकिन उनका मेटाबॉलिक सिस्टम कंटामिनेशन को इतने जल्दी निगेट नहीं कर पाता है। हेंस चिल्ड्रन, ये सारे फैक्टर्स ये दिखाते हैं कि भले ही वाटर पोल्यूशन हो, एयर पोल्यूशन हो, वेस्ट कहीं डंप हो, या फिर कोई एक्सट्रीम फ्लैश फ्लड, साइक्लोन वगैरह आ जाए, चिल्ड्रन आर मोर वल्नरेबल टू अडल्ट्स। ओके, नाउ these are the vulnerability of a youth, of a kid, of a child to climate change and environment degradation. But a youth or a child can also take some measures to fight climate change. Let's move to the next slide. आगे की 4 स्लाइड्स और ये लास्ट की 4 स्लाइड्स हैं जो ये बताती है कि what can you do to become a climate champion. Maybe you cannot make a policy, maybe आप रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम नहीं बना सकते, लेकिन आप कुछ तो कर सकते हैं। तो आइए जानते हैं आप क्या कर सकते हैं। इससे पहले मैं नेक्स्ट स्लाइड में जाऊं, जस्ट लेट मी रैंडमली आस्क, कैसी कौन सी चीजें जो आप अपने घर में बैठे कर सकते हैं टू इंश्योर कि कम एमिशन हो, टू इंश्योर कि आप एनवायरमेंट को पोल्यूट ना करें, टू इंश्योर कि पोल्यूटेड एनवायरमेंट को थोड़ा सा ठीक कर सकें। लेट मी फाइंड द आंसर्स इन द चैट बॉक्स एंड रीड देम। ठीक है, आप वेस्ट सेग्रीगेट करेंगे। अगर आप वेस्ट सेग्रीगेट करेंगे, वेट वेस्ट से कंपोस्ट बन जाएगा, और जो ड्राई वेस्ट है वो एक मटेरियल रिकवरी फैसिलिटी में उसको थ्रेडिंग, उसकी बेलिंग, सॉर्टिंग करके कुछ when there is no need. Okay, less use of refrigerator. ऐसे कैसे आप लेस यूज ऑफ रेफ्रिजरेटर करेंगे? आप बंद कर देंगे रेफ्रिजरेटर? नहीं, लेकिन आप ये बोल सकते हैं मैं स्टार रेफ्रिजरेटर लूंगा, 5 स्टार, यानी सेम बिजली, सेम कूलिंग करेगा लेकिन बिजली की खपत कम होगी। मिनिमलिस्टिक लाइफस्टाइल बहुत बड़ा वर्ड है, इसका मतलब ही लिख दीजिए। ट्री सैपलिंग प्लांट करना, गुड, very good. Local is the, I think I strongly use local vegetables, local, buy from a local vendor, use public transport, obviously less use of AC. बोला जाता है कि AC में का टेम्परेचर जब, अगर आप बहुत धूप से आए, ठीक है आप उसको कर लीजिए 22-23, but when you think it has cooled the room, please do not use an AC more than 27 degrees Celsius. It's a very ambient temperature. इससे ज्यादा एक बार रूम ठंडा हो जाता है, जरूरत नहीं है। Don't keep it under 18 degree. That's not required. Use solar light. Okay. NGOs can work on circular economy. It's a big term, circular economy. You have to break it down. Buying things when they are essential, very important. जो आप सोचिए आपको जरूरत है कि नहीं, जबरदस्ती मत खरीदिए। जितनी आप चीजें खरीदेंगी आप उतना प्रोडक्शन को इनकरेज करेंगी। आपको 4 कॉफी मग्स क्यों रखने हैं अलग अलग, जब आप एक कॉफी मग से बार बार पी सकती हैं? व्हाई डू यू हैव टू हैव 5 हैंड बैग्स, जब 2 या 1 हैंड बैग काफी है? आप जितना सामान खरीदेंगी आप, यू आर प्रमोटिंग इंडस्ट्रीज टू मैन्युफैक्चर मोर। साइकिल का उपयोग करें, ओके, गुड गुड। I see. So एक bring your BYOG कैंपेन है अंडर मिशन लाइफ।
BYOG है bring your own bag. I always take my own cloth bag whenever I go to market. देखिए ऑर्गेनिक फार्मिंग में शायद ना कर पाऊं, मेरे पास जमीन और खेत नहीं है, बट मैं कभी भी घर से बाहर जाऊंगी मेरी बॉटल मेरे बैग में हमेशा रहती है. आई नेवर परचेज अ प्लास्टिक बिस्लरी वाटर एटसेट्रा. These are small things you can do. I always carry a cloth bag when I go to the market to buy something. I never buy vegetables in the plastic bag they give. Teach at school? Okay, yes. Avoid plastic paper. Good. ठीक है. Lots of options. Self-discipline is very good. Yes. Recycling. अब हम देखते हैं कि slides में क्या है. I understand the participants are full of energy, but also let's see what more you can do. इसमें और भी ideas हैं. So the next slide now. हम लोग अब देखना ये देखते हैं कि आप लोग घर में बैठे बैठे नहीं, आप लोग अपने सोफे में, अपने टेबल में, अपने बेड में बैठे बैठे क्या कर सकते हैं. सबसे पहले आप मिशन लाइफ प्लेज ले सकते हैं. प्लीज गो टू मिशन लाइफ की वेबसाइट, उसमें प्लेज लीजिए. उसमें लिखा हुआ है कि यू विल प्रैक्टिस अ सस्टेनेबल लाइफस्टाइल, अ लाइफस्टाइल which lets you also bloom and which lets the nature also bloom. ऐसा नहीं है कि आप डेवलप होंगे नेचर का कुछ ना हो, आप भी ग्रो करिए और नेचर भी ग्रो करे. ओके, सो व्हाइल सिटिंग एट द काउच यू कैन स्विच ऑफ योर लाइट. आप देखिए कमरे में अगर 5 वाट के या 10 वाट के CFL से काम चल रहा है तो प्लीज उतना लगाइए. हो सके तो 2 बल्ब लगाइए, एक ट्यूब लगाइए, एक बल्ब लगाइए. पढ़ाई करें ट्यूबलाइट यूज करिए, LED, और पढ़ाई नहीं कर रहे हैं 5 वाट का बल्ब यूज कर लीजिए. ओके, स्टॉप जनरेटिंग पेपर रिसीट. वी आर अ जनरेशन, हम लोग हर चीज ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करते हैं और उसको अपने मोबाइल या लैपटॉप में सेव कर लेते हैं, बट हमारे पेरेंट्स आज भी हर चीज की रिसीट चाहिए, इंक्लूडिंग माई ओन पेरेंट्स. उनको बिजली का बिल भी रिसीट चाहिए. मैं बोलती हूँ मेरे पास ऑनलाइन है मेल में, बट ही वांट्स अ प्रिंट आउट. बट धीमे धीमे उनको बताना होगा कि नहीं, मैंने आपके मोबाइल में डाल दिया है, हमारे पास सेव्ड है, एवरीथिंग की रिसीट नहीं चाहिए. आप ATM में जाइए, आस्क यू do you want a bank statement of your transaction? I have never ever taken out ACM receipt, never. Please, कभी भी फ्लाइट का टिकट, कभी भी ट्रेन का टिकट नहीं लिया है. इट्स ऑलवेज ऑन माई मोबाइल. व्हाई शुड आई वेस्ट पेपर? ओके, टर्न ऑफ योर लाइट. कंप्यूटर स्क्रीन की लाइट काफी रहती है, आपको कंप्यूटर में यूज करते समय ट्यूबलाइट या LED लाइट की जरूरत नहीं है तो ऑफ कर दीजिए, या फिर एक 5-10 वाट का बल्ब से काम चल जाएगा. और अगर आप नेशनल और स्टेट पॉलिसीज इंफ्लुएंस नहीं कर सकते तो एटलीस्ट शहरों में RWAs होते हैं, रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन. आप अपने सोसाइटी के सेक्रेटरी के पास जाइए और उनसे बोलिए कि हमारी सोसाइटी क्या कर रही है, आप क्या कर रहे हैं, आपको सेक्रेटरी बनाया, व्हाट आर यू डूइंग इन द कैपेसिटी ऑफ अ सेक्रेटरी. सेव इलेक्ट्रिसिटी की बात करी है. प्लग ऑफ द अप्लायंसेस इफ दे आर नॉट इन यूज. कुछ लोग का मोबाइल 100% से ज्यादा चार्ज हो जाता है लेकिन चार्जिंग पे लगा रहता है. सेम विद द लैपटॉप, को दिन भर काम आप करेंगे and it will be charged throughout the day. If it is 100% charged, just switch it off. I mean, plug it off. And try to cut down your carbon footprint in these small ways. ठीक है, अब हम देखते हैं what can you do from your house, which is level 2. So level 1 का मेरे ख्याल से it's easy. You all can do level 1. Let's go to level 2. What can you do from your home? अब हम लोग घर से क्या कर सकते हैं? Air dry. Let your hair and clothes dry naturally. A lot of women, I'm not saying I'm against dryer, but I have never used a dryer in my life, never. और पहले की महिलाएं भी ऐसा करती थी, उनको नहाने के बाद, हेयर वॉश करने के बाद बाल सुखाना होता था. 8 बजे सब लोग 7 बजे 6 बजे नहा करके धूप में बाल सुखाती थी. इस तरीके से विटामिन D भी लेती थी. So if you use a dryer, आप घर के अंदर रह के वही ड्रायर से अपना हेयर भी सुखाएंगे और खुद भी सूखेंगे. So why not go out, dry your hair in the sun. ऑफिस जाने के रास्ते में भी सन पड़ता है, घर स्कूल जाने के रास्ते में भी, कॉलेज जाने के रास्ते में भी सन पड़ता है. Let it dry in the sun. स्कूल जाके कॉलेज जाके just comb it once again. Similarly, वॉशिंग मशीन में आपको हर चीज ड्राई नहीं करना है, just rinse it. and आजकल तो
You also get those gadgets जहाँ कपड़े, you know, those are dryers. आप कपड़े उसके ऊपर लगा दीजिए, मशीन से धोने के बाद वो खुद ही सूख जाएंगे. But all this is not required. Sun is doing its work well. Let the clothes dry in the sun. Let yourself dry in the sun. Let your hair dry in the sun. Similarly, eat less meat, poultry, and fish. Now, I am not promoting vegetarianism here, but एक buffalo, एक cow, एक goat को ग्रो करने में बहुत सारा रिसोर्सेस लगता है. वही एक बैगन को, एक अमरूद को, एक कद्दू या लौकी को उगाने में बहुत कम रिसोर्स लगते हैं. स्पेशली जो क्रीपर्स होती है ना, वो तो बिना किसी किसान से पूछो, वो कहता है सबसे आसानी से क्रीपिंग वेजिटेबल्स होती हैं, पानी भी कम लेती हैं, उनमें ज्यादा खाद भी नहीं डालनी होती और हो जाती हैं. वही एग खाने के लिए आपको हेन को कितना चारा फीड देना पड़ता है, आपको उनके लिए पानी देना पड़ता है, उनको किसी स्पेशल कंडीशन में रखना पड़ता है. तो बहुत सारे रिसोर्सेज लगते हैं टू ग्रो अ लाइफस्टॉक, टू ग्रो हेन्स एंड पोल्ट्री. वही अगर आप एक प्लांट बेस्ड डाइट में स्विच करें, कम रिसोर्सेस, कम पानी लगेगा, कम खाद लगेगी, और इट विल बी रिसोर्स एफिशिएंट फूड, राइट. आपको नहीं पता आपका मीट कितने दूर से आ रहा है, उसमें भी तो ट्रांसपोर्टेशन का खर्च होता है. वही सब्जी आपने लोकल वेंडर से ली, अगेन I will always discourage, don't buy vegetables from a mall. मॉल में आप यूपी में रहते, कहा मध्य प्रदेश के किसी किसान से होके आया, इतना फुटप्रिंट एक बैगन का है, आप अपने बगल लोकल किसान से लीजिए, मंडी से. That's more sustainable and lesser footprint. And thirdly, avoid food waste. Leftover meal, it's very difficult कि मैं किसी को ढूंढूं कि मैं अपनी leftover meal दूं, लेकिन यहाँ पर मैं बोलूंगी कि always put that quantity in your plate जितनी required हो, उससे ज्यादा मत लीजिए. आप second serving ले सकते हैं, भले आप किसी शादी में गए हो या फंक्शन में गए हो, you can always take a second serving, but उतना ही लीजिए जितना required हो. Similarly, for water also, काफी restaurant instead of filling your glass to the brim with water, half fill करने लगे हैं, because लोग थोड़ा सा पीते हैं, उसके बाद they start having their drinks and food. पानी कोई नहीं पीता और वो सब वेस्ट जाता है. So please avoid food waste, avoid drinking water waste. Bath, do not bathe longer than necessary. कुछ लोग सिर्फ इसलिए नहाते क्योंकि बहुत गर्म हो रहा है और पानी शावर से आता जा रहा है और वो नहाते जा रहे हैं. एक बकेट, जो बकेट से भी नहाता है, एक बकेट खत्म हुआ, दूसरा बकेट, बिकॉज दे फील गुड. Especially kids, I have seen my own nephew, एक बकेट खत्म, दूसरा बकेट, he doesn't come out of the bathroom. बट पानी हम लोगों को जितना हम वेस्ट कर रहे हैं, आप समझिए बहुत से ऐसे गांव हैं, बहुत से ऐसे शहर भी हैं, दिल्ली में बहुत से ऐसे गांव हैं, राजस्थान में, आंध्रा में, यूपी में, बुंदेलखंड साइड, जहाँ ड्रिंकिंग वाटर भी नहीं अवेलेबल है. सो प्लीज व्हेन यू आर टेकिंग अ बाथ, रियलाइज जितना क्लीन करने के लिए चाहिए उतना ही यूज करें. डोंट मिसयूज बेदिंग वाटर एज वेल. सेफ इलेक्ट्रिसिटी बताया है कि अपने एयर कंडीशनर्स को 24 डिग्रीज में रखिए. आई कीप माई AC अराउंड 27, 28, इससे ज्यादा, इससे कम मैंने कभी नहीं रखा है. और हाँ, प्लीज डू सेग्रीगेट योर वेस्ट. व्हाट आई डू, मैं अपने घर की चाय पत्ती और सब्जी कटा हुआ, आई पुट इट इन मिट्टी का गमला, वो खुद ही कंपोस्ट हो जाता है और सारा ड्राई वेस्ट ही कूड़े वाले के पास जाता है. नेवर गिव माय वेट वेस्ट टू अ कूड़ा वाला. वेट वेस्ट घर में उसकी खाद बन जाती है. एक मिट्टी के गमले में डाल दीजिए, सुराही में डाल दीजिए, 3 महीने बाद खोलिए, उसमें थोड़े थोड़े छेद कर दीजिए सुराही में, 3 महीने बाद खोलिए, वो कंपोस्ट बन गया. राइट, यू जस्ट put your food waste, और food waste तो होना नहीं चाहिए. Please take a pledge, you're not going to waste food. Put it in a fridge, eat it next day. Don't cook more than is required. So level 2 मेरे ख्याल से भी करा जा सकता है. It's doable, you all can do. Let's move to level 3. Okay, what you can do in your neighborhood. Shop local, public transport use करिए, आसपास की जगह बाइसिकल से भी जा सकते हैं. ट्रेडमिल का इस्तेमाल प्लीज मत करिए. आप घर के पार्क में जॉग करिए, घर की रोड में जॉग करिए. जब भी मार्केट जाइए अपना ओन बैग ले जाइए, वहां से प्लास्टिक की थैलियां इकट्ठा करके मत लाइए दुकान से.
एंड यस, हो सके तो अपनी सोसाइटी में बात करिए, अपने अगर रूरल एरिया है तो सरपंच से बात करिए और बोलिए कि जितना हो सके सोलर इंट्रोड्यूस करें गांव में, अपने घर में, अपनी सोसाइटी में। कुछ नहीं तो स्ट्रीट लाइट ही सोलर करना स्टार्ट कर दें। और हाँ, एक किचन गार्डन जरूर बनाए जहाँ जरूरत भर की चीजें। मेरे घर में बहुत बड़ी जगह नहीं है टू गार्डन, लेकिन पुदीना हम लोग हमेशा अपने घर से लेते हैं, धनिया घर से, कड़ी पत्ता घर में उगा रखा है। तो थोड़ी बहुत चीजें आप घर में भी, पान कैसे बचाएं, ओके। एंड लेवल 3 यानी डूएबल है, इसमें से काफी चीजें आप कर सकते हैं। एंड लेवल 4 विच इज द लास्ट स्लाइड, the next slide. Okay, what you can do at work. So जितने भी यूथ पार्टिसिपेंट काम पे जाते हैं, प्लीज इंश्योर कि अपने ऑफिस में जरूर बात करिए वाटर एफिशिएंट टैप्स की, जो हाथ रखे तभी पानी निकले। इवन एनर्जी एफिशिएंट लाइट आती है हमारे ऑफिस में, है कि जैसे बाथरूम में स्टेप करा लाइट खुद जल जाती है, जैसे स्टेप आउट करा वो खुद ही ऑफ हो जाती है। सो इट्स लाइट इज बीइंग सेव्ड। टेम्परेचर स्पेशली ऑफिस में, सबको लगता है कि ऑफिस का एसी है तो 18 में चलाओ, बट प्लीज टॉक टू योर ऑफिस पीपल कि एसी का टेम्परेचर 27 में सेट करें। सुबह थोड़ा टाइम लगेगा कूलिंग होने में, बट वंस इट इज सेट, आई थिंक 27 इज एम्बिएंट टेम्परेचर। आप सस्टेनेबल ट्रांसपोर्ट यूज करिए आपके ऑफिस में या फिर आपके शहर में। मे बी दिल्ली में इलेक्ट्रिक बसेस हो गई हैं, काफी शहर में हो गई हैं, बट इवन इलेक्ट्रिक बसेस ना हो, मेट्रो का यूज करिए, ऑटो का यूज करिए। इंश्योर दैट सारे फ्रेंड्स जो हैं एक साथ कॉलेज जाएं, कॉलेज से आए अगर सेम रास्ता हो, सो दैट यू कैन सेव फ्यूल। हाँ, और ये भी ध्यान दीजिए कि जब आप प्रिंट करते हैं ऑफिस में कुछ, तो डबल प्रिंटिंग लीजिए, उसके मार्जिन्स थोड़े बढ़ा दीजिए। कारपूलिंग इज बेस्ट, यस ऑफ कोर्स इट इज। मेट्रो इज बेस्ट, बसेस आर बेस्ट। अपने ऑफिस में, अपने घर में ग्रीन स्पेसेस करिए, एयर प्यूरिफाइंग प्लांट्स लगाइए, मनी प्लांट, स्नेक प्लांट, ferns, यूरेका, अरेका पाम, ऑल दीज आर नेचुरल प्यूरिफाइंग प्लांट्स, इन सबको यूज करिए। ओके, यूज साइकिल फॉर नियर बाय वर्क एंड यू कैन ऑल्सो वॉक डाउन। मेरे ख्याल से 1 किलोमीटर तो सब चल सकते हैं। वाई गो टू द नियर बाय मार्केट इन योर बाइक और इन योर कार। 1 किलोमीटर 1.5 किलोमीटर के अंदर है, इतना वॉक सबको करने की जरूरत है टू कीप हेल्दी। So these are the 4 levels in which you can work. Before I end, I would like to ask all participants कि इसमें से आप एक एक्शन चूज करिए, 2 भी कर सकते हैं, but what do you think you will now adopt in your life? And life, I means life throughout. ये मत कहिए कि मैं, don't be very ambitious. आप बहुत छोटा सा कुछ स्टार्ट कर सकते हैं, मैंने भी बहुत छोटा सा ही स्टार्ट करा है, but one action point, one takeaway, this thing I'll start doing from tomorrow, from today itself. So a request from the participants to let me know. इनमें से एक चीज तो मैं, because you're a stakeholder too, please remember. No, it may be informative, but okay, save water in daily uses. I don't want save water. आप कैसे save करेंगे? Carry cloth bag, very good. You can say I'll divert my RO water to a bucket. Electricity consumption कैसे करेंगे? And okay, you'll have your own water bottle. Please ensure it's a steel bottle. कांच में से नहीं प्रेफर करती, बहुत जल्दी टूट जाता। स्टील हाथ से कितनी बार गिरे, it will still be durable. Okay, growing vegetables and fruit. Okay. Avoid food wastage. Some more steps. Some more action points. Okay, since 5 years, reuse everything possible. Kitchen garden. Buy less clothes. I like this. Buy less clothes. Jitna zaruri ho utna. Please don't buy too much. With every time you're buying unnecessary stuff, you're increasing production.
Okay, you will use less AC, or maybe you can say I'll keep the temperature to 27 degrees Celsius. उसमें भी less use होता है. Okay, good. So lots of action point. Minimum use, eco-friendly. But eco-friendly what? Indigenous method of agriculture. Okay. And please, bathing का किसी ने use handkerchief, not napkin. I really like this. Please carry your own handkerchief to office. हर बार टिश्यू मत पुल करिए, बहुत ज्यादा. जितने बार टिश्यू आपने पुल करा, आप समझिए एक पेड़ कटेगा. Never take receipt in ATM. Good. Even अपने रेलवे टिकट का कभी प्रिंट आउट मत लीजिए, कोई नहीं देखता है वो. Good. So I think I'm C for plants and dry land. Okay. But Namrata, I think my duty is over. I think I would like to end with a thank you to all participants. लेफ्ट में आपको जो एक मैस्केट दिख रहा है, ये मिशन लाइफ का मैस्केट, इसका नाम है प्रकृति. और जो राइट में आपको 3 लोग दिख रहे हैं, एक लड़की है जिसका नाम है तुली, बीजू है ये लड़का जिसके हाथ में प्लेन है, और एक ये छोटी सी जो मधुमक्खी है, दिस हनी बी इज फ्रिस्बी. ये तीनों यूनिसेफ कैरेक्टर्स हैं. इनके वीडियोस आपको ऑनलाइन दिखेंगे, बहुत इंटरेस्टिंग वीडियोस हैं. यू कैन गो टू यूट्यूब एंड सर्च बीजू, तुली, फ्रिस्बी, यूनिसेफ क्लाइमेट वॉरियर्स, और ये प्रकृति मिशन लाइफ की मैस्केट है. So thank you everybody. You've been a very vibrant participant. You've answered all that I've asked you. You've also taken some climate action for the coming days and years. I hope it's a climate action for life, and it is aligned with Mission Life. So over to you, Namrata. It was a very great audience, and I thank you for the opportunity. Thank you so much, ma'am. I hope I'm audible. Yes, you are audible. I hope, ma'am, I'm audible. Trying So, to ma'am, video, I but think I can't see question that. answer round की तरफ we can move. Okay. Can you hear me? I can hear you. I think for some reason my screen is reversed. I need to fix this. It's the other side, I think. Yeah, if I'm putting my hand on the other side, I do not know. For some reason, this has got reversed. I'll fix it later in the Hello? office, or maybe there's. Nirma, ma'am. Yes, I can Voice hear आ रही है? you. I can hear you. Namrata, I can hear you. Audible. Namrata, you are audible. Actually, you are unable to listen ma'am's voice. Ma'am's voice is also clear. I think there is some problem at your end. Hello. हाँ नम्रता बोलिए. Hello, ma'am. Am I audible? Yes, you're audible. Actually, आपकी voice नहीं आ रही. अच्छा, आपका I can नेटवर्क hear थोड़ा you. हो सकता है गड़बड़ हो. Let me type. Okay. Ma'am, actually, we had a question answer round, so I just want to take. I know the session is about to end, so wanted to just take 2 or 3 questions of the participants. Yes, if there are Okay. any questions, I'm Uh, happy to take them up.
But then मैम आप आंसर कैसे करेंगे? Will you be typing the answer in the chat box? No, others are able to hear. I think you are not able to hear. Yes, I can hear both of you. Am I audible? Yes, yes, Ajit. Yes, Namrata, go ahead. Can you hear? Others are able to hear you. Namrata, Okay, we wait, can I'll hear just you, Namrata. rejoin from the We other can hear device. you. Everyone is able to hear you. You can speak. Okay, so let me take this ahead. If there's any question from any participant, we can please do put it on the chat box. I'll be happy to take it up. Maybe anything on UNICEF's work, maybe anything we're doing on water sanitation, maybe anything on agriculture, maybe anything on climate change. You're free to ask. Please type your questions. What's the role of, okay, the role of government in climate change? I have already informed. India is a very committed country. It has already submitted its action points, which we called as nationally determined contribution to UNFCCC as a part of Paris Agreement, and we are ensuring that हम लोग अपना कार्बन सिंक इंक्रीज करें, हम लोग सोलर, हम लोग रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ शिफ्ट करें, हम लोग अपना emissions intensity reduce करें. So India is one of the countries, like as it said, which is doing very well in terms of climate change in the global space. It's one of the best performing countries. How can we get associated with climate change? Acha, theek hai, I'll let you know. So UNICEF has a platform called Yuva, which I have typed. Yuva is Generation Unlimited, and there is something called U-Report platform. If you join the U-Report platform, you will get access to what is happening in UNICEF. So काफी बार U-Report में quizzes आती हैं, where we tell you mission life के कुछ questions होंगे, where we let you know UNICEF next क्या कर रहा है, if you want to be a participant there or an audience there. So let me check अगर मेरे पास U-Report का number हो, U-Report India, I'll share the link. You can go to U-Report and join now. There is a number. Just let me put it here so that आप सब U-Report join कर लें. ये लिंक है, इसमें U-Report कैसे join करना है उसके steps दिए हैं. आपको WhatsApp पे ये जो steps दिए हैं, ये नंबर टाइप करके हेलो या हाय लिखना है और आप लोग U-Report का पार्ट होंगे. इसके साथ साथ प्लीज डू फॉलो यूनिसेफ सोशल मीडिया, ट्विटर, फेसबुक, और क्या होता है, आई एम नॉट ऑन सोशल मीडिया सो आई डू नॉट नो. ट्विटर, फेसबुक, इंस्टाग्राम, यहाँ पर काफी अपडेट्स आते रहते हैं. यू विल गेट टू नो what new is happening, if there are workshops, if there are campaign going on. और हाँ, जो लोग उड़ीसा के पार्ट हैं, या वहां पर एक यूथ फॉर वाटर नेटवर्क है उड़ीसा में. आई विल ऑल्सो शेयर लिंक ऑफ द यूथ फॉर वाटर नेटवर्क. और जो महाराष्ट्र में है, वहां पर यूनिसेफ का नहीं है एक्चुअली, काफी स्टेक होल्डर्स का है. ग्रुप कॉल माइका, महाराष्ट्र यूथ क्लाइमेट एक्शन नेटवर्क है. यूथ फॉर वाटर का सबसे पहले मैं आपको लिंक भेजती हूँ. यू कैन ज्वाइन यूथ फॉर वाटर बहुत ज्यादा कैंपेन्स करता है, क्लीनिंग रिवर्स, पॉन्ड्स, सी बीच में प्लॉगिंग करना. प्लॉगिंग मीन्स जॉगिंग कर करके. यू कैन ऑल्सो गो टू दी सी बीचेस, क्लीन देम, वाटर कंजर्वेशन. सो जितने भी उड़ीसा में हैं, प्लीज यूथ फॉर वाटर, आई एम राइटिंग यूथ फॉर वाटर for those participants who are from Odisha and would like to join. जो महाराष्ट्र के हैं, यहाँ पर एक यूथ नेटवर्क है.
माइका, इसका भी मैं आपको लिंक भेजती हूँ. सो दीज आर एरियाज विच यू कैन ज्वाइन एंड बी एसोसिएटेड. ये सिर्फ यूनिसेफ ओन्ड नहीं है, ये अपने स्टेट्स के नेटवर्क हैं, इंक्लूडिंग स्टेट गवर्नमेंट इन नेटवर्क्स का पार्ट है. सो यू विल बी इन टच विद वॉट एवर द स्टेट गवर्नमेंट इज डूइंग. तो महाराष्ट्र और उड़ीसा का तो मैंने आपको भेज दिया है. फील फ्री टू ज्वाइन दीज. यू कैन ऑल्सो ज्वाइन व्यू रिपोर्ट इंडिया, उससे आप यूनिसेफ के अपडेट्स लेते रहेंगे. सो या दैट्स फ्रॉम माय एंड. दैट आई थिंक दैट्स द ओनली वे आई कैन हेल्प यू एज ऑफ नाउ. निर्मा जी, एक और क्वेश्चन है, पता नहीं हो सकता है रिलेवेंट हो, अगर इसी को लेके बस हम इन करेंगे. एक किसी ने पोस्ट किया है, एनडीसी एट प्रेजेंट स्टेट ऑफ प्रोग्रेस, कैन वी अचीव नेट जीरो एज प्लान 2070 और समथिंग. कहाँ पर लिखा हुआ है? इसी चैट में एक क्वेश्चन किसी ने डाला है. अच्छा, तो मैं सबसे पहले नेट जीरो का कॉन्सेप्ट समझा देती हूँ. जी जी. देखिए, जब हम लोग नेट जीरो की बात करते हैं ना, तो हम लोग ये नहीं कह रहे हैं कि एमिशंस जीरो हो जाएगा. ऐसा पॉसिबल ही नहीं है. अगर एमिशन जीरो हो जाएगा तो मैं तो कैसे रहूंगी भाई, बिना बिजली के, बिना आपसे बात करे हुए, बिना सेशन लिए. ये सेशन इलेक्ट्रिसिटी से रन कर रहा है. इलेक्ट्रिसिटी किसी पोल से कनेक्टेड है. वो पोल इंडिया में अभी भी 60 to 70% पावर थर्मल पावर बेस्ड है, कोल बेस्ड है. नेट एमिशन नहीं हो सकता. बट व्हेन वी टॉक ऑफ नेट एमिशन, हम लोग हमेशा ये बात करते हैं कि अगर मैं से सपोज इतना मेट्रिक टन एमिशन कर रही हूं, तो इतने मैंने कार्बन सिंक भी करे हैं कि वो बैलेंस जीरो हो जाएगा. तो अगर आपको नेट एमिशन करना है तो एमिशंस अपने लेवल पे एज अ ग्रोइंग इकोनॉमी होता रहेगा. बट आपको मेजर्स लेने पड़ेंगे सो दैट एडिशनल कार्बन सिंक क्रिएट हो, और जो कार्बन जनरेट हो रहा है उतना एमिशन ट्रीज, सॉइल, फॉरेस्ट एज अ सिंक अब्सॉर्ब भी करें. इवन ओशंस आर अ गुड कार्बन सिंक. हमारा काफी GHG एमिशंस ओशंस में दे एक्ट एज अ सिंक और वहां जाके अब्सॉर्ब होता है. फॉरेस्ट आर अ सिंक. तो नेट जीरो का कॉन्सेप्ट यही है. और बिल्कुल 2070 तक पॉसिबल हो सकता है. लेकिन हाँ, इसके लिए हमको अपने एमिशंस कम करने होंगे. एमिशंस होंगे हमारी तरफ से, टोटल एमिशंस की रेट कम हो और हमारी तरफ से कार्बन सिंक्स ज्यादा बने, तभी नेट जीरो पॉसिबल है. बट इट इज पॉसिबल. हाँ, लेकिन आप समझिए, नेट जीरो एमिशन का मतलब ये नहीं कि जीरो एमिशन. इट इज नेवर सेइंग कि इंडिया विल हैव जीरो एमिशन. नेट जीरो एमिशन होगा. जैसे ग्रॉस, जैसे हमारी भी सैलरी जो है वो नेट जब होती है तो उसमें कट जाता है, डिडक्शंस होके आती है. वैसे ही जब नेट जीरो होगा तो उसमें दे विल डिडक्ट कि सिंक्स कितने बन गए हैं. अच्छा ठीक है, अगर मैंने 100 मेट्रिक टन एमिशन करा और 100 मेट्रिक टन का कार्बन सिंक्स बनाए थ्रू ओशंस एंड फॉरेस्ट, so it is net zero in that ways. It is possible. It is definitely possible. थैंक यू वेरी मच फॉर क्लैरिफिकेशन. so नम्रता मैम आ गई है. नम्रता मैम, हैंड ओवर टू यू. Yes, ma'am. I'm so sorry, ma'am. Usually मेरा network इतना unstable नहीं होता. I don't know what went wrong today. But despite all the difficulties, I think we managed to have a really good session because of you. आपने इस सेशन को इतना engaging और इतना informative बनाया. I think आपको मैम ये हमारे participants के थ्रू पता ही चल गया होगा. They are always very appreciative और वो अपना appreciation show करते हैं through the comments. And thank you for also answering the questions of the participants. अब मैं अजीत सर को invite करना चाहूंगी for the official vote of thanks, sir. Over to you, sir. थैंक यू नम्रता जी. आप बिल्कुल सही बोल रही हैं. आज का जो सेशन रहा वाकई काफी इंटरैक्टिव रहा, जैसा कि पार्टिसिपेंट्स ने अपने व्यू चैट के माध्यम से दिए हैं. इस सेशन में जैसा कि हम लोगों ने शुरू से ही
एक क्लाइमेट के पूरे सिनेरियो के बारे में चर्चा सुनी निर्मा जी से। इसके अलावा हमने इसमें काफी बारीकियों से जो एक्शन प्लान है इंटरनेशनल, नेशनल और स्टेट लेवल पे क्या क्या कैसे बने हैं उसकी पूरी क्लैरिटी आपने जो हमारे सामने रखी है। मुझे लग रहा है पार्टिसिपेंट्स को काफी ये इससे क्लैरिटी मिली होगी। इसके बाद गवर्नमेंट के क्या क्या जो प्लान्स हैं, और एक जो बहुत सिंपल चीज था लेकिन बहुत ही इससे अधिक जानकारी मिली कि किसी न किसी रूप में सारी मिनिस्ट्रीज और सारे डिपार्टमेंट क्लाइमेट चेंज और एनवायरनमेंट की जब बात आती है तो उसमें सभी लोग किसी न किसी रूप में लगे हुए हैं। तो ये हमारे लिए एक जानना बहुत ही अहम रहा। इसके बाद आपने जो की डेवलपमेंट सेक्टर्स हैं, ऑर्गेनाइजेशंस, जिसमें यूएन के एजेंसीज की बात से लेके, और इसके बाद आपने बाकी जितने इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, नेशनल ऑर्गेनाइजेशंस वगैरह की बात की। लास्ट में आपने एक बहुत अच्छा हमारे लिए वो किया कि इम्पैक्ट क्लाइमेट चेंज का बच्चों पे और यूथ पे क्या क्या कैसे पड़ रहा है, उसके बारे में आपने काफी जो चर्चा की वो हमारे लिए और भी अच्छा रहा। इसके बाद आपने हमें इंडिविजुअल लेवल पे और जैसे वर्क प्लेस पे भी, घर पे कैसे इन चीजों को अपने लेवल पे एक्शन लेने की जरूरत है उसके बारे में काफी बारीकी से आपने हमें समझाया। मैं समझता हूं कि आज का ये सेशन काफी हमारे लिए महत्वपूर्ण और काफी इंफॉर्मेटिव रहा। मैं विश्व के इनकी तरफ से, मेवाड़ ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन की तरफ से निर्मा जी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ आपके इतने अच्छे इंफॉर्मेटिव सेशन के लिए। और एक चीज और मुझे आज बहुत पसंद आई, और मैं जानता ही नहीं था कि हमारे पार्टिसिपेंट्स इतने नॉलेजेबल हैं, जिन्होंने जब भी क्वेश्चंस वगैरह की बात आई इतने कायदे से उन्होंने और इतने धड़ल्ले से सभी प्रश्न के उत्तर दिए कि शायद मुझे लग रहा था कि जैसे कभी कभी किसी सेशन में हमें स्पीकर्स ये सारे हमारे एक तरह से रिसोर्स पर्सन ही हैं। तो मैं एक बार अपने सभी प्रतिभागियों का भी बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। इस तरह से मैं आप सभी को इस कार्यक्रम में इस एक्टिव पार्टिसिपेशन के लिए बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, स्पेशली निर्मा को धन्यवाद।